باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام بامطابق مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب۔ بزتا کا لنگڑا۔ بعد ازاں یہودیوں کی عید تھی اور یسوع یروشلم کو گیا، اور یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بزتا کہلاتا ہے، جس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے ناتوان پڑے تھے، اندھے، لنگڑے اور پس مردے، جو پانی کے ہلنے کے منتظر تھے، کیونکہ خداوند کا ایک فرشتہ وقفہ حوض میں اتر کر پانی کو ہلاتا تھا، اور جو کوئی پانی کے ہلنے کے بعد حوض میں پہلے اترتا، خواہ کیسی بھی بیماری ہوتی، وہ اس سے شفا پاتا۔ اور وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیمار تھا۔ یسوع نے جب اسے پڑا دیکھا اور جانا کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، تو اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب یہ پانی ہلے تو مجھے حوض میں اتار دے، اور جب تک میں خود آپ پہنچوں دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا۔ فی الفور وہ شخص تندرست ہو گیا اور اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا گیا۔ اور وہ دن سبت کا تھا۔ پس یہودیوں نے اس سے، جس نے شفا پائی تھی، کہا کہ آج سبت ہے، تجھے روا نہیں کہ اپنے کھٹولے کو اٹھا لے جائے؟ اس نے انہیں جواب دیا کہ جس نے مجھے شفا بخشی، اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا کہ اپنا کھٹولا اٹھا کر چلا جا؟ مگر شفا یافتہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ یسوع وہاں کے ہجوم کے سبب سے ٹل گیا تھا۔ بعد ازاں یسوع نے اسے ہیکل میں پایا اور اس سے کہا، دیکھ، تو نے شفا پائی ہے، پھر گناہ نہ کرنا، نہ ہو کہ تیرا حال اس سے بھی بدتر ہو جائے۔ وہ شخص گیا اور یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے شفا بخشی ہے وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ سبت کو ایسے کام کرتا تھا۔ مگر اس نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں۔ اس وجہ سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ نہ صرف سبت کا احترام نہیں کرتا تھا، بلکہ خدا کو اپنا باپ کہہ کے اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ پس یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے باپ سے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتا دیکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، کیونکہ باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے، اور جو کچھ آپ
करता है उसे देखता है, बल्कि वो इससे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम तज्जब करोगे। क्योंकि जैसा बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसे ही बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करे जिस तरह से कि बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और ज़ेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही के मर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में जिंदगी रखे और उसे इख्तियार भी बख्शा की अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। इससे तज्जब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे, और जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते निकलेंगे, और जिन्होंने बदी की है फतवा की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं सुनता हूँ वैसे ही अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी को नहीं बल्कि उसकी मर्जी को जिसने मुझे भेजा चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही काबिल इतबार नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है काबिल इतबार है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है। गो मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बातें कहता हूँ ताकि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था, और तुम्हें पसंद आया कि थोड़ी देर तक उसकी रोशनी से खुश रहो। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम मेरे बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप ही ने जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही देता है। तुमने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना उसकी सूरत देखी, और तुम उसका कलाम अपने बातन में कायम नहीं रखते, इसलिए कि तुम उसके भेजे हुए का यकीन नहीं करते। तुम नविश्तों में ढूंढते हो इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि इन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है, और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम्हें जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। तुम जो आपस में एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं ढूंढते।
क्यों कारे मान ला सकते हो, गुमान मत करो कि मैं बाप के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारा शिकायत करने वाला मूसा ही है जिस पर तुम्हारा भरोसा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे ही हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का भी यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे। आमीन। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब की पहली आयत में लिखा है, बाद अज़ा यहूदियों की ईद थी और यीशु यरूशलेम को गया, और यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बराता कहलाता है। 5 बाब की पहली आयत अहबार की किताब उसका 23 बाब 5 आयत, तस्नीह अशरा की किताब उसका 16 बाब पहली आयत और 5 बाब की 10 आयत में लिखा है, पास यहूदियों ने उससे जिसने शिफा पाई थी कहा कि आज सब्बत है, तुझे रुआ नहीं कि अपने खटोले को उठा ले जाए। 5 बाब की 10 आयत खरूज की किताब उसका 20 बाब 11 आयत, अरमिया नबी की किताब उसका 17 बाब की 24 आयत में लिखा है और 5 बाब की 37 और 39 आयत में लिखा है, आयत 37, और बाप ही ने जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही दी है, तुमने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना उसकी सूरत देखी। 5 बाब की 37 आयत, तस्नीह शरा की किताब उसका 4 बाब की 6 आयत में लिखा और 5 बाब की 39 आयत, और बाप ही ने जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही दी है। 39, इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि उन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है, और ये वही है जो मेरी गवाही देते हैं। 5 बाब की 39 है, तुम नविश्तों में ढूंढते हो, मसीह यहूदियों को मलामत करता है क्योंकि उसे नहीं पहचानते जिसका जिक्र नविश्ते करते हैं, और जिसके बगैर वो जिंदगी और वो नविश्तों में ढूंढते थे उन्हें ना मिल सकती थी। और 5 बाब की 46 आयत में लिखा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरी ही हक में लिखा है। 5 बाब की 46 है, तकवीन की किताब उसका 3 बाब 15 आयत और 22 बाब की 18 आयत और 49 बाब की 10 आयत में लिखा है, और तस्नीह शरा की किताब उसका 18 बाब की 15 आयत में लिखा है। आमीन।